وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. और वो उन्हें लिखना पढ़ना और दानाई और तौरात और इंजील सिखाएगा। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। वो ये कि तुम्हारे सामने मट्टी की मूरत बशक्ल परिंद बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं। और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो, सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरत खुदा की निशानी है। और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं, और मैं इसलिए भी आया हूं कि बाज चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं। और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ जब ईसा ने उनकी तरफ से नाफरमानी और नियत कत्ल देखी तो कहने लगे कि कोई है जो खुदा का तरफदार और मेरा मददगार हो। हवारी बोले कि हम खुदा के तरफदार और आपके मददगार हैं। हम खुदा पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फर्माबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख। और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और खुदा भी ईसा को बचाने के लिए चाल चला और खुदा खूब चाल चलने वाला है। उस वक्त खुदा ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। यानी जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको खुदा पूरा पूरा सिला देगा और खुदा जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम तुमको खुदा की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल खुदा के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मट्टी से उनका कालिब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकतुल हाल तो मालूम हो ही चली है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं और तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक खुदा से दुआ और इल्तिजा करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक खुदा गालिब और साहिब हिकमत है। فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون अगर ये लोग फिर जाएं तो खुदा मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ए अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि खुदा के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं और हम में कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज न समझे। अगर ये लोग इस बात को न माने तो उनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम खुदा के फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون। इब्राहीम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक खुदा के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहीम से कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते हैं, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और खुदा मोमिनों का कारसाज है। ए अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दें, मगर ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا
أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ऐ अहले किताब, तुम खुदा की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो। ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खलत मलत क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो और तुम जानते भी हो। और अहले किताब एक दूसरे से कहते हैं कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाए और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और के कायल ना होना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो खुदा ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को मिलेगी, या वो तुम्हें खुदा के रूबरू कायल माकूल कर सकेंगे। ये भी कह दो कि बुजुर्गी खुदा ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और खुदा कशाइश वाला और इल्म वाला है। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास रुपयों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास 1 दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआखजा नहीं होगा। ये खुदा पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हाँ, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और खुदा से डरे तो खुदा डरने वालों को दोस्त रखता है। जो लोग खुदा के इकरारों और अपनी कसमों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे खुदा न तो कलाम करेगा और न कयामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. और उन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता, और खुदा पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि खुदा तो उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना सजावार है कि ए अहले किताब, तुम उलमाए रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब खुदा पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या उसे जेबा है कि तुम्हें काफिर होने को कहे। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ और जब खुदा ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं, फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे, तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और उस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया, यानी मुझे जामिन ठहराया? उन्होंने कहा, हां, हमने इकरार किया। खुदा ने फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। तो जो उसके बाद फिर जाएं वो बदकिरदार हैं। क्या ये काफिर खुदा के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशियां जबरदस्ती से खुदा के फरमाबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ। कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे, और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली, सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी खुदाए वाहिद के फरमाबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। खुदा ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए, और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। उन लोगों की सजा ये है कि उन पर खुदा की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत हो। خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين हमेशा उस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे ना तो अजाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। हां, जिन्होंने उसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए, ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए, वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भरकर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। उन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और उनकी कोई मदद नहीं करेगा।